Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope all of you will be enjoying good health. I've got your journal science and it's for class 7. So dear students, open chapter number 5 at page number 46. We have got chapter 5 and it's about water. You are going to open your books with me and we will read together and we will learn about the water. Okay, so let's start the reading. Water is the most common component on Earth and its atmosphere. It covers more than 70% of surface of the Earth. It exists in three physical states of matter, that is solid, ice, liquid water, and gas, water vapors, and steam. So the most common compound of Earth is what? Water. We have got more than 70% area of Earth covered with water. Okay. So as you know, we have got three states of matter: solid, liquid, and gas, and water exists in all three forms. आइस आपकी सॉलिड है, वाटर आपका जो लिक्विड है, और फिर उसके बाद आपका वाटर वेपर्स और जो स्टीम है ये आपका क्या है? गैशियस फॉर्म है. वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्रीज एंड बॉयल्स एट 100 डिग्रीज. ये आपके फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं आपके वाटर के. The temperature at which water converts into ice is called freezing point, and the temperature at which it starts boiling is called its boiling point. Okay, so freezing point is 0 and boiling point is 100. So water is what? H2O. In the previous classes you must have learned that atom join together to form molecules. So one water molecule has got three atoms, two hydrogen atom and one oxygen atom. So a single drop of water contains billions of these water molecules. Okay, so here we have got one oxygen and two hydrogen, then it will make one water molecule. Okay, so water for life. All living things need water to survive. Plants, fish, insect, birds, other animals all need water to grow. Green plants must have water to make food during photosynthesis. Some plants and animals live only in water. Aquatic animals use oxygen dissolved in water, and aquatic plants use carbon dioxide dissolved in water. Okay, so water आपकी तमाम जितनी living things हैं आपके planet पे, whether they are plants, animals, humans, all of them need water. ओके, और आपके जो प्लांट्स हैं उनको तो मोस्टली वाटर चाहिए क्योंकि उन्होंने फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड बनानी होती है, सो दे नीड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस. एक्टिविटी जो आपके बहुत से प्लांट्स एनिमल्स पानी में रहते हैं वो तो सर्वाइव इसलिए करते हैं कि उनको पानी चाहिए होता है, एंड दे गेट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन द वाटर. Our body also needs water. Water makes up about 2/3 of our body. तो हमारी जो बॉडी है उसका 2/3 जो पार्ट है वो क्या है? वाटर है. Water helps us in several ways. Water helps to digest food, to remove waste product from our body, keeps our body cool in hot weather by sweating, which is mainly water. हमने देखा होगा आपको पसीना आता है, वो पसीना भी क्या होता है? वो पानी होता है. ठीक है, तो आपको वाटर चाहिए, आपको ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है. ओके, सो वी माइट बी एबल टू लिव फॉर अ मंथ विदाउट फूड, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मोर देन अ वीक. तो आप खाने के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर आप ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रह सकते. सो हाउ डज वाटर हेल्प अस टू लिव? जैसे कि आपने ऊपर भी पढ़ा कि आप ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत है आपको पानी की जब आपने पीना हो, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, डिश वॉशिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, आप जिस भी काम को आप करते हो उसमें आपके कहीं ना कहीं वाटर इन्वॉल्व होता है. सो यू नीड वाटर टू लिव. यहाँ पर आपका बताया गया कि आपके ब्लड में, ब्रेन में, लंग्स में कितने % आपका पानी होता है, और ओवरऑल हमारी बॉडी में 60-70% वाटर होता है. टमाटो में, एप्पल में कितने % वाटर है? एज यू कैन सी 95% ऑफ टमाटो इज वाटर. ओके, एंड द प्योर वाटर हैज़ नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल.
तो जो आपका प्योर वाटर है उसकी निशानी क्या है? प्योर वाटर होता है जो ड्रिंकिंग वाटर होता है कि ना तो उसका कोई कलर होगा, ना उसका टेस्ट होगा और ना ही उसका कोई स्मेल होगा। सो सोर्सेज ऑफ वाटर, कि हमारे पास वाटर के सोर्सेज क्या हैं? सो वाटर not only present on the surface of earth but also beneath its surface. सो सरफेस वाटर हमारे पास दो सूरत में होता है, एक हमारे पास ओशन वाटर होता है, एक हमारे पास फ्रेश वाटर होता है। सो 97% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन ओशन। तो ज़्यादातर जो आपके पास अर्थ की सरफेस का पानी है वो कहाँ क्या होता है? वो आपका ओशंस की फॉर्म में होता है और ये सॉल्ट वाटर होता है। सिर्फ 3% जो टोटल आपकी अर्थ सरफेस का पानी है, सिर्फ 3% है फ्रेश वाटर जो कि आपका अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वट वाटर वेपर्स एंड अंडर द ग्राउंड। ओके, सो ओशन वाटर इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व गैसेस, सॉल्ट। प्योर वाटर में ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, इसीलिए ओशन का वाटर जो है ना बहुत सॉल्टिश होता है। इसमें गैसेस भी होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड होती हैं। जो मेजर डिजॉल्व सॉल्ट होता है वो सोडियम क्लोराइड है जिसको आप टेबल सॉल्ट कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट एक्सेट्रा। ये तमाम सॉल्ट्स हैं जो आपके सी वाटर में होते हैं। सोडियम क्लोराइड इज़ मोर अबंडेंट सॉल्ट इन ओशन वाटर। सबसे ज़्यादा इनमें कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसको आप टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। सो ओशन वाटर इज़ अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ दी सॉल्ट। इतना सॉल्टी होता है कि आप इसको ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए हुए हैं जिससे ये इस सॉल्ट को वाटर से अलग करते हैं और इस वाटर को ड्रिंकेबल बनाते हैं। सो फ्रेश वाटर क्या है? मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न। सो अर्थ के ऊपर ज़्यादातर जो हमारे पास फ्रेश वाटर हैं वो क्या है? फ्रोज़न फॉर्म में है। जैसे कि आपका माउंटेन्स में आपके ग्लेशियर्स होते हैं। हमने ग्लेशियर्स का वर्ड सुना होगा कि जो आपकी हर साल स्नोफॉल होती है तो वो आपके पहाड़ों के ऊपर एक के बाद एक लेयर बनाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये ग्लेशियर हो गए हैं। स्नो एक्यूमुलेट्स ईयर आफ्टर ईयर टू फॉर्म आइस शीट्स, यानी एक शीट मौजूद थी, फिर अगले साल दोबारा उस पर स्नोफॉल हुई, फिर दोबारा स्नोफॉल हुई, तो वो क्या होता है? ग्लेशियर की फॉर्म बना देते हैं। These ice sheets are called glaciers. Fresh water is also found in streams, lakes, rivers, ponds. At some places where ground is low, the water stays for part of the year and makes the ground very wet. कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ तकरीबन सारा साल पानी खड़ा रहता है, तो वो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ग्राउंड बहुत वेट हो जाता है। उन जगहों को क्या कहते हैं? आप वेटलैंड्स कहते हैं। सो वी हैव गॉट Pugri, Kur and Kharki are few wetlands in Sindh province. सिंध के अंदर की कुछ जगह हैं जहाँ पे जिनको आप वेटलैंड्स कहते हैं, जहाँ पे ग्राउंड मोस्टली आपका वेट होता है, गीला होता है। द वाटर इन द वेटलैंड मूव्स डाउन इनटू द सॉइल एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर। अब ये क्या होता है? ये जो वेटलैंड्स में जो पानी ऊपर होता है ये क्या होता है कि ये पानी नीचे तक ग्राउंड के चला जाता है, इसकी सोकिंग हो जाती है और इसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर कहते हैं। वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। अब अभी हम लोगों ने जो सरफेस वाटर है वो हमने पढ़ा क्या था, अब हम देखेंगे कि बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास कौन सा पानी होता है। रिकॉल व्हाट हैपन्स टू द रेन व्हेन इट फॉल्स। रेन वाटर कैन एवेपोरेट, रन्स ऑफ द सरफेस और सोक इनटू द ग्राउंड। अब रेन वाटर क्या होता है? एवेपोरेट हो जाता है, या क्या होता है कि बह जाता है, या आपका ना जो ग्राउंड है उसके अंदर जज्ब हो जाता है। सोकिंग का मतलब है जज्ब हो जाता है। द वाटर दिस सोक्स इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब जो सोकिंग हो गई उसको आप क्या कहेंगे? इसको आप ग्राउंड वाटर कहेंगे। द टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज एयर। एक्विफर इज द वाटर टेबल। अब ये जो आपका वाटर की जो आपकी अमाउंट होती है ग्राउंड वाटर की टॉप लेवल पे, इसको आप क्या कहते हैं? वाटर टेबल बोलते हैं। ये जो वाटर टेबल है ये तमाम साल इसको चेंज होता रहता है। जब कभी ज़्यादा बारिश होगी तो आपका ये जो वाटर लेवल है ये ज़्यादा हो जाएगा, जब आपकी बारिश कम होगी तो क्या होगा? ये वाटर टेबल आपका नीचे चला जाएगा। सो इट राइजेज व्हेन वाटर इज़ एडेड बाय रेन, इट बिकम्स लोअर व्हेन देयर इज़ अ ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या कहते हैं? वो टाइम जब बारिश नहीं होती तो उसको खुश्कसाली ड्राफ्ट कहते हैं। पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सर्फेस। इसमें क्या होता है कि लोग फिर डिगिंग करते हैं, कुएँ बनाते हैं, ट्यूबवेल्स होती हैं,
पम्प्स होते हैं जिससे क्या होता है ग्राउंड जो वाटर है उसको ऊपर लेकर आते हैं. At some places, the water table rises and reaches near the surface of the soil. This water may come out in the form of spring or geyser. Several natural springs are found in Nathia Gali, के पी के पाकिस्तान. ठीक है, आप पाकिस्तान में नथिया गली के अंदर आपको बहुत से ऐसे छोटे छोटे चश्मे नज़र आएंगे, गीज़र्स नज़र आएंगे, जिसमें आपका जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो इतना ज़्यादा ऊपर हो जाता है कि ये पानी ऊपर आपको सरफेस पे एक चश्मे की सूरत में नज़र आता है, स्प्रिंग्स की फॉर्म में. अब हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़. पानी में आपको पता है कि जब भी जो आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, जब भी उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें शामिल हो जाएंगी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो उस पानी को गंदा कर देंगी, फिर वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं बनेगा, इस काबिल नहीं रहेगा. पानी में जर्म्स होते हैं. इट में ऑल्सो हैव सॉल्ट, डर्ट और अदर केमिकल्स इन इट. अब ये तमाम क्या है, ये इम्प्योरिटीज़ हैं पानी की. The addition of harmful substances into the water is called water pollution. Harmful and unwanted substances in water are pollutant. So water pollution क्या होती है कि जब ये तमाम आपके सॉल्ट्स हो गए या आपके जर्म्स हो गए, डर्ट हो गई, केमिकल्स होते हैं, ये सब आपके पानी में जाते हैं तो उस पानी को क्या करते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं. सो पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एक तो बैक्टीरिया, वायरस, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपकी डिजीज़ कॉज करते हैं. यानी आप अक्सर पानी पीते हैं इस तरह का जो ख़राब हो तो आपका पेट ख़राब हो जाता है, आपको डायरिया हो जाता है, तो उसकी वजह क्या होती है, ये बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उस पानी में. एसिड, सॉल्ट्स एक्सेट्रा और वाटर सॉल्युबल पोल्यूटेंट. दीज पोल्यूटेंट कैन इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ एल्जी. अब आपने देखा होगा पानी में बाज़ों का काई, ग्रीन से रंग का एक मटेरियल सा पानी में आ जाता है. वो किसकी वजह से होता है? एसिड सॉल्ट्स की वजह से होता है. और इस द प्रेजेंस ऑफ एल्जी कैन ब्लॉक द सनलाइट टू रीच अदर प्लांट्स इन द वाटर. और अगर आपकी एल्जी किसी जगह के ऊपर, पॉन्ड के ऊपर आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि सनलाइट अब नीचे एक्वेटिक प्लांट्स तक तो पहुंच नहीं पाएगी, तो वो तमाम जितने जो प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर सकेंगे. Plants cannot make their food and die. As a result, fish and other aquatic animals also die. क्योंकि आपके फिश और कुछ और एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो कि इन प्लांट्स को खा के ज़िंदा रहते हैं. सो अगर ये प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो भी आपकी डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अल्टीमेटली डाई हो जाएगी. Oil, plastic and pesticides are also harmful to all plants and animals in the water. अब आप ऑयल है, बाज़ आपका ये जो क्रूड ऑयल होता है ये पानी में डाल दिया जाता है. प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, पेस्टिसाइड्स होती हैं जो कीड़े मार दवाइयाँ होती हैं, ये तमाम क्या करती हैं, ये भी पानी को पोल्यूट करती हैं. यू आर हाइकिंग एंड यू आर थर्स्टी, वुड यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम, वाई और वाई नॉट. जो आपकी स्ट्रीम्स हैं ये आपका ग्लेशियर मेल्ट होता है और उससे क्या आ रही होती हैं जब आप हाइकिंग कर रहे होते हैं, तो सम प्लेसेस पे तो ये साफ़ होता है पानी, ठीक है, इसके अंदर कोई मतलब बुरी चीज़ मिक्स नहीं हो रही होती. बट एट सम प्लेसेस जैसे लोग जो वहाँ पे रह रहे होते हैं उनका जो ड्रेन का सिस्टम होता है, सीवेज वाटर होता है, वो उस पानी में आ रहा होता है. कुछ और वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो कूड़ा वगैरह है वो वहाँ उस पर फेंका जा रहा होता है, तो वो पानी ड्रिंकेबल नहीं होता. बट इफ़ यू आर श्योर कि एक ऐसा पानी जो डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा है उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पानी कंपैरेटिवली आपका साफ़ होता है. सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. तो वाटर पोल्यूशन हमारी बेसिकली होती कैसे? सबसे पहले तो ह्यूमन वेस्ट होता है. पीपल रिलीज सीवेज इन ड्रेन्स विच कैरी टू रिवर्स. अब आपका जितना भी ड्रेन का सिस्टम है, ड्रेनेज होती है, सीवरेज लाइन होती है, वो क्या होती हैं, जितना वो पानी है वो रिवर्स में डाल देती हैं. उसके अंदर फैट भी होते हैं, टॉयलेट वेस्ट होता है, फूड पार्टिकल्स होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, जैसे आप कपड़े वगैरह धोते हैं, वॉशरूम धोते हैं, बैक्टीरिया होते हैं एक्सेट्रा. अब ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि ये उस सीवरेज के पानी में होती हैं और वो रिवर में चला जाएगा. और ऑब्वियसली उससे क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स जो उस पानी को अगर यूज़ करेंगे तो वो भी बीमार होंगे, और जितनी एक्वेटिक लाइफ है वो भी बीमार, यानी इंसान, जानदार, जितने लोग भी फिर उस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं वो सब बीमार हो जाते हैं. इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है कि उनके टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, उनको भी रिवर्स और कैनाल्स, नहरों में छोड़ दिया जाता है. ये स्मोक और टॉक्सिक जो गैसेस हैं वो इंडस्ट्रीज़ में से निकलती हैं, जिससे जो आपका रेन वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है, और उसको एसिड रेन बोलते हैं. कि ये जितना मतलब जो गैसेस होती हैं और स्मोक होता है ये बादलों के साथ मिक्स होता है, और जो रेन वो करता है उसको एसिड रेन कहते हैं. ये एसिड रेन
जहाँ जहाँ गिरती है ये वहाँ क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है और ह्यूमंस की बहुत सी स्किन की डिजीज़ हो जाती हैं, लंग्स की डिजीज़ हो जाती हैं इसकी वजह से। और फिर ये एसिड रेन जब आपके एक्वेटिक एनिमल्स के लिए किस तरह डेंजरस होती है कि जब ये एसिड रेन आपके रिवर के वाटर के साथ मिलती है तो वहाँ पे भी आपके फिश और एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को किल कर देती हैं। नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजर्स। तो अक्सर आपको पता है पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ होती हैं क्रॉप्स के लिए। तो अब जब भी बारिश होती है तो वो ये केमिकल्स वगैरह को आपके जो वाटर सोर्सेज होते हैं उनके साथ मिक्स कर देती है। जैसे वहाँ पे अगर कोई नहर बह रही है तो उस नहर के पानी के अंदर, कैनाल के वाटर के अंदर जब ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स वाला पानी मिक्सअप होगा तो उसको पोल्यूट कर देगा। दिस पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट फिट फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि आप अगर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आप लेते हैं ग्लासेस और उनमें आप कैनाल नहर का पानी डालते हैं, तालाब का पानी डालते हैं, टैप वाटर जो आपका पानी होता है जो टोटी में से आता है आपका, वो डालते हैं और एक में आप इंक डालते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा पानी है जो कि आप पीना चाहेंगे? सारी सी बात है, आप इसके अंदर जो आपको पानी सबसे साफ़ लगेगा वो आप पीना चाहेंगे और वो कंपैरेटिवली है टैप वाटर। टैप वाटर भी आपका ड्रिंकेबल होता है लेकिन बेटर है कि आप इसको बॉयल करके यूज़ करें क्योंकि इसके अंदर भी समटाइम बहुत सी ऐसी इम्प्योरिटीज़ और जर्म्स मौजूद होते हैं। सो नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है फर्टिलाइजर्स वाली कि इसमें आपने एक टैप वाटर लेना है, एक में पॉन्ड वाटर लेना है और फर्टिलाइज़र लेनी है। तो आपने क्या करना है कि आपने बॉटल ए के अंदर आपने फर्टिलाइज़र डालना है, ठीक है, और फिर आपने ऑब्जर्व करना है कि आपने इसको सनलाइट में रख के ऑब्जर्व करना है कि आपका कौन सा पानी है जिसमें आपका एलजी ज़्यादा हुआ है, और वो ए में होगा क्योंकि इसमें आपने क्या डाला था, फर्टिलाइज़र डाला था। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये एलजी की ग्रोथ को एक्सलरेट करता है, ज़्यादा करता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो आपकी बॉटल ए है उसके अंदर आपको एलजी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा लगेगी, नज़र आएगी, ठीक है। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर क्या होता है? सो सॉफ्ट वाटर वो होता है कि जब आप साबन है, साबन को आपने देखा होगा जब आप हाथों पे मलते हैं तो उससे क्या होता है, झाग बनता है, लेदर बनता है। सो आपका सॉफ्ट वाटर वो होगा जब आप साबन से झाग बनाएंगे तो बन जाएगा। द वाटर वी यूज़ इन हाउस इज़ सॉफ्ट वाटर। आपने देखा होगा कि जब आप टैप ओपन करते हैं, आप अपने बेसन में हाथ धोते हैं तो आपका बहुत अच्छा सा लेदर बन जाता है, झाग बन जाता है जब आप साबन यूज़ करते हैं, तो वो सॉफ्ट वाटर है। द वाटर विच डज नॉट गिव लेदर विद सोप बट फॉर्म्स कर्ड्स इन इज कॉल्ड हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर में क्या होता है, लेदर नहीं बनता और ऐसे अजीब सी एक स्टिकी सी ना पेस्ट काइंड ऑफ चीज़ बन जाती है आपके सोप से, तो उसको आप कहते हैं हार्ड वाटर। ओके, तो सी वाटर इज हार्ड वाटर। वाटर बिकम्स हार्ड व्हेन क्लोरीन, सल्फेट और कार्बोनेट सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। ओके, सो जब पानी के अंदर आपका क्लोराइड हो, ठीक है, जैसे सी वाटर में आपका सोडियम क्लोराइड होता है, सल्फेट या कार्बोनेट सॉल्ट्स आपके इसके अंदर मौजूद हों तो ये क्या हो जाता है, हार्ड वाटर। अब आप समुद्र का पानी लें और उससे हाथ धोने की कोशिश करें तो आपके हाथों पे साबन का जो झाग है वो बिल्कुल नहीं बनेगा। वाई डू सिटीज़ एंड टाउन्स प्यूरिफाई वाटर बिफोर इट इज़ सप्लाइड टू होम्स? ज़ाहिर बात है, होम सप्लाई से पहले पानी को साफ़ किया जाता है बिकॉज आपका ये पानी ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ होता है, कुकिंग में यूज़ होता है, वॉशिंग में यूज़ होता है, तो इट शुड बी क्लीन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लीनिंग ऑफ वाटर, कि हम लोग पानी को किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। Water may have germ, dirt, salt, other things dissolve in it. All these things must be removed before drinking the water. आपको पता है ड्रिंकिंग वाटर हमेशा आपका क्लीन होना चाहिए। सो टैप वाटर भी बाज़ औक़ात उसके अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, डर्ट होती हैं, जर्म्स होती हैं, इन सबको आपके पानी से रिमूव होना चाहिए। सो इसको आप जो भी प्रोसेसेस इसको रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज़ को, उस प्रोसेस को आप कहते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। तो हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिससे हम लोग वाटर को प्यूरीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है फिल्ट्रेशन। सो इन लेबॉर्ट्री वी प्यूरीफाई वाटर विद द मेथड ऑन स्मॉल स्केल। इम्प्योर वाटर इज पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब ये देखें फिल्टर पेपर है, उससे आप जब वाटर क्रॉस करेंगे तो उसके ऊपर आपको नज़र आएगा, अगर उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, चीज़ें हैं, तो वो आपको यहाँ नज़र आएंगी, ठीक है। तो एक तो तरीका है आपका फिल्ट्रेशन का, ओके। तो उसमें अगर कोई सॉल्ट्स हैं, कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो आराम से हो जाएंगे। आपने देखा होगा अक्सर आपके किचन के अंदर फिल्ट्रेशन लगा होता है,
3 बॉटल्स होती हैं उसमें जो फिल्ट्रेशन प्लांट छोटा सा एक आपका लगा हुआ होता है आपकी बेसन के साथ, और उसमें से जो पानी आता है वो क्लीन होता है, यानी आप उसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उससे ये जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं ये आपकी जो है वो अलहदा हो जाती हैं उस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। ओके, देन वी हैव गॉट बॉइलिंग। बॉइलिंग आपका सबसे सेफेस्ट वे होता है पानी को उबालने का। तो ज़्यादातर आपके जो विलेजेस में हैं वो क्या करते हैं कि वो इस मेथड को यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास और फैसिलिटीज़ नहीं होती, तो वो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए उसको बॉयल करते हैं। उससे जर्म्स और जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं पानी में वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने पानी को 15 से 30 मिनट तक आपने उसको बॉयल करना है, फिर उसके बाद आप उसे ठंडा करके आप उसे यूज़ करें, तो दैट इज़ द सेफेस्ट वाटर। देन वी हैव गॉट क्लोरिनेशन। इफ़ बॉइलिंग इज़ नॉट पॉसिबल वी कैन ऐड लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच टू द वाटर। तो एक और तरीका जिससे अगर आप जैसे बॉयल नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं, आप पानी में ब्लीच यूज़ करते हैं। ब्लीच क्या होता है, उसमें क्लोरीन होती है। फॉर दिस पर्पज प्लेस द वाटर इन अ क्लीन कंटेनर, एड द अमाउंट ऑफ ब्लीच एंड क्लोरीन अकॉर्डिंग टू द टेबल। ठीक है, अब 1 लीटर पानी है तो उसमें 3 ड्रॉप्स डलेगा, 2 लीटर पानी है तो उसमें 5 ड्रॉप्स डलेगा, और अगर 1 गैलन है पानी का तो उसमें आपका कितना डलेगा, 1/8 ऑफ अ टीस्पून। ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी होगी क्लोरीन ब्लीच की पानी में उसको क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट एक और केमिकल है जो हम यूज़ करते हैं, वी कैन ऐड पोटैश alum to the water to purify it. Sand, clay and other suspended impurities of water will settle down. Water will be pure after decantation. Okay, so potash alum आप इसमें डालेंगे पानी में, उससे क्या होगा कि जितनी आपकी सस्पेंडेड चीज़ें हैं, जैसे आपका कुछ सॉल्ट है या आपका सैंड वगैरह है, वो आपकी तमाम चीज़ें पानी में नीचे बैठ जाएंगी, और उसके बाद आप पानी ऊपर से डिकेंटेशन कहते हैं नितार लेना, यानी आप पानी ऊपर से आराम से अलहदा कर लेंगे तो इम्प्योरिटीज़ नीचे होंगी। इन लाहौर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैज़ इंस्टॉल्ड वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नियर ट्यूबवेल्स टू प्रोवाइड सिटीजन्स विद प्योर एंड क्लीन वाटर। ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं ये वैसे बहुत सारी सिटीज़ में मौजूद होते हैं, लोग इनको लगाते हैं जिससे आपको कंपैरेटिवली जो है वो क्लीन वाटर मिलता है। उसके बाद हमारे पास ये है कि वाटर कमिंग आउट ऑफ नेचुरल स्प्रिंग में कंटेन सल्फर। Presence of sulfur makes this water germicidal. People use water of such spring to treat the skin diseases. ठीक है, अब कुछ जगहों पे नेचुरली पानी के अंदर सल्फ़र मौजूद होता है तो लोग इस पानी से नहाते हैं ज़्यादातर। बेसिकली उससे क्या होता है कि स्किन की जो डिजीज़ हैं वो क्योर हो जाती हैं। एवरी ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाई बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़ सच एज डायरिया। ये उन एरियाज़ में होता है, यहाँ पर आपको पता है कि पानी है, पानी को आप एज सच, आप जैसे टैप वाटर है, अब आप टैप वाटर को अगर एज सच यूज़ करेंगे तो मे बी उससे आपका पेट ख़राब हो जाए क्योंकि वो बिल्कुल आपका साफ़ नहीं है, उसमें जर्म्स भी हो सकते हैं। तो उसकी वजह से बाज़ों का छोटा बच्चे ख़ास तौर पे जब उन्हें डायरिया होता है तो वो उससे बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए पानी के मामले में बहुत एहतियात करनी चाहिए और पानी बॉइल्ड यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव गॉट डिस्टिलेशन। We get clear tap water, but it's not pure. It may contain some salt and bacteria in it. We can use the process of distillation to separate impurities from the water. In simple distillation, water is heated, convert into steam. Steam is cooled down into distilled water. अब एक तरीका तो ये है कि पहले आप वाटर को इतना हीट करो कि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, फिर आप उस जो आपके वेपर्स हैं उनको आप ठंडा करोगे तो वो आपका डिस्टिल्ड वाटर होगा। तो इम्प्योर वाटर होता है उसको आप जो एक क्लोज कंटेनर है फ्लास्क, उसके अंदर आप उसको बॉयल करते हो। वाटर वेपर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ बॉइलिंग वाटर पास थ्रू अ पाइप इनटू अ वेसल called condenser. The condenser is a tube surrounded by large tube through which cold water is passed to cool the water vapors. As the water vapors pass through the condenser, they lose heat and become liquid water. This distilled water is collected in a separate container beaker. Solid impurities remain at the bottom of the flask. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास सारा एक मौजूद है। तो यहाँ पर फ्लास्क है, देखिए यहाँ से हीट हुआ, पॉप वेपर्स ऊपर गए, यहाँ से आपका ये कंडेंसर से गुजरे। ठीक है, तो इसमें आपकी ये आउटलेट्स हैं, ये आपका एडाप्टर है। ठीक है, वाटर आपका कोल्ड वाटर जो है ये इधर से आप देते हैं
और इधर से आपका वाटर बाहर जाता है, ठीक है। ये आपका है डिस्टिलेशन प्लांट, एक छोटा प्लांट जो आपकी लैब्स में अवेलेबल होता है। ओके, सो यहाँ पे भी आपका एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, ये अपने लास्ट ईयर जो आपकी बुक है उसमें आपका ये मौजूद है, और उसके अंदर भी ये आपका बताया गया कि किस तरीके से आप इसको ले लेते हैं कि आप पानी और सॉल्ट को मिक्स करके एक लार्ज बॉल में रखें, उसके अंदर एक स्मॉल आप गिलास है वो रखें, लेकिन उसकी जो सरफेस है वो वाटर को टच नहीं करनी चाहिए, उसको आप रैप करेंगे प्लास्टिक शीट से और उसके ऊपर एक स्टोन रख देंगे वेट के लिए, ठीक है। और फिर आप उसको सनलाइट में रखते हैं ताकि आपका वाटर जो है वो एवापोरेट हो। फिर उसके बाद आपकी फाइंडिंग्स हैं कि आपने ये देखना है कि आपका जो बाहर वाला बाउल है उसके आपके बेस पे क्या मौजूद है, और जो आपका अंदर कप है उसमें जो आपका वाटर है उसका टेस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस ऑफ वाटर स्टूडेंट्स आपको खुद बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप घर में एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आपकी हर जगह के ऊपर आपका वाटर कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में यूज़ हो रहा होता है। सबसे पहले तो जैसे होम में है, आप ड्रिंकिंग के लिए वॉशिंग, ब्रशिंग योर टीथ, फ्लशिंग टॉयलेट, कुकिंग, ड्रिंकिंग, इन तमाम पर्पसेस में आप वाटर यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर में जारी बात है आप पानी देते हैं पौधों को तो फिर ही आपकी वेजिटेबल्स, क्रॉप्स आपकी प्रिपेयर होती हैं, ठीक है। फिर आप इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज़ यूज टू move propellers of turbines to run generators that produce electricity, which is called hydroelectricity. There are 5 major and several small hydroelectric projects in Pakistan, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वाटर यूज़ करते हैं टर्बाइंस को मूव करने के लिए, जिससे जनरेटर चलता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इंडस्ट्रीज़ में आपका पानी बहुत यूज़ होता है। बेवरेजेस होती हैं, जो आपकी जितनी भी ड्रिंक्स वाली चीज़ें हैं, और आपके जो फूड है, जो आपका जो पैक्ड फूड होता है उसके अंदर आपका वाटर रॉ मटेरियल में यूज़ होता है। क्लीन करने के लिए और वॉश करने के लिए मेटल की सर्फेसिस को आप यूज़ करते हैं वाटर। हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस, ऑयल रिफाइनरीज एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ वाटर फॉर कूलिंग पर्पस, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो डिफरेंट जैसे होती हैं आपकी रिफाइनरीज वगैरह हैं, वहाँ पर आप वाटर को किस लिए यूज़ करते हैं, कूलिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। आपके जो बहुत हॉट बॉइलिंग जैसे आपके सब्सटेंसेस हैं उनको कूल करने के लिए आप वाटर यूज़ करते हैं, ओके। पीपल ऑल्सो यूज़ वाटर फॉर वाटर स्पोर्ट्स। आपकी जैसे बहुत सी स्पोर्ट्स हैं, स्विमिंग है, आपकी फ़िशिंग है, सेलिंग है, ठीक है, इसके लिए भी आप वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और वी कैन एंजॉय वाटर स्पोर्ट्स इन वाटर पार्क्स। वाटर पार्क्स में अगर आप जाओ वहाँ पे बहुत सारे पूल्स होते हैं, पॉन्ड्स होती हैं, स्लाइड्स होती हैं आपकी जो वाटर पॉन्ड्स में जा रही होती हैं। सो आप इन चीज़ों के लिए भी आप पानी यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कंजर्व वाटर। आपको पता है वाटर इतना इंपॉर्टेंट है, और आजकल जैसे एक थ्रेट है कि पानी का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम पानी को कंजर्व करें, यानी उसको हम लोगों को बचाना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जब आप ब्रश कर रहे हो आपने तब जो टैप अपनी है उसको आपने बंद कर देना है। आपने जो रनिंग वाटर है उसमें अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को वॉश नहीं करना, ठीक है। और डिशेस को अपने रनिंग वाटर में वॉश नहीं करना। और वॉशिंग मशीन आपने फुल लोड के साथ चलानी है। सम टाइम होता है ना कि बस 2 से 3 कपड़े डालें और आपने वॉशिंग मशीन चला दी, नहीं, तो आप जब तक उसको फुल लोड नहीं करेंगे इस तरह आपका पानी बहुत ज़ाया हो जाता है। इफ़ यू हैव अ लॉन वाटर इट अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपका उस वक्त सनलाइट कम होती है, तो क्योंकि सनलाइट की वजह से वाटर एवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने प्लांट्स को आप पानी तब दें जब उनके पास पानी कुछ देर रहे। जैसे आप इवनिंग में दे देते हैं, आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग दें जब अभी सनलाइट इतनी स्ट्रांग नहीं हो। चेक रेगुलरली द लीक्स, जैसे आपके वाटर पाइप्स वगैरह होती हैं उसमें बाज़ों का लीकेज आ जाता है, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरता रहता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो ये आपके कुछ ऐसे तरीके हैं कि जिसके अंदर आप पानी को कंजर्व कर सकते हैं। देन पेपर मिल्स, ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स शुड कंजर्व वाटर बाय रिड्यूसिंग वाटर यूज़, रीसाइकलिंग ऑफ वाटर एंड रीयूजिंग वाटर। सो आप अगर वाटर को रिसाइकल करें, रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, इससे भी आप कर सकते हैं। ये 3R फार्मूला होता है। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो ख़ास तौर पे पानी को अगर इस तरीके से यूज़ किया जाए तो उसको आप कंजर्व कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा, इसमें हमने पानी के मुतालिक पढ़ा। आपने पहले भी आप जानते हैं कि पानी कितना ज़रूरी है, आपके पास पानी के कितने सोर्सेज हैं।
कहाँ से वाटर आता है, अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ आपके पास पानी है, आप उसे प्योर कैसे करते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज़ क्या हैं, पोल्यूशन क्या है, फिर उसके अंदर आपका जो यूज़ है वो क्या है, वाटर को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ी हैं। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इजी हैं, आप इसको खुद से करने की कोशिश करें। जैसे कि फर्स्ट है लार्ज शीट्स ऑफ आइस क्या होती हैं, ग्लेशियर्स होती हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ वाटर, इसको क्या कहते हैं, वाटर को प्योरीफाई करना कहते हैं, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स आपके कौन से हैं, फ्रेश वाटर के आपके सोर्सेज हैं। ठीक है, सरफेस वाटर के आपके सोर्सेज हैं। हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस इन वाटर वो क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं। टॉक्सिक गैसेज इन द एयर रिएक्ट विद रेन वाटर टू मेक एसिड रेन। ओके, नेक्स्ट आपके एमसीक्यूज हैं, कोशिश करें इन एमसीक्यूज को आप खुद से अटैम्प्ट करें ताकि आपकी रीडिंग भी परफेक्ट हो जाए और आपकी प्रिपरेशन हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं डिटेल वाले, इनको आप लोगों ने ले लेने हैं नोट्स इनके। ठीक है, आपके एडमिन ऑफिस से मौजूद हैं, आप वो नोट्स लें और इनको अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपकी असेसमेंट है, तो जब आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और फिर उसके बाद इसकी लर्निंग करेंगे तो आपकी असेसमेंट्स इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओके, सो ये आपका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैप है, बहुत इजी है, इस तरीके से मैंने इसको किया है, आप भी इसको इस तरीके से खुद से करने की भी कोशिश करें। सेव वाटर इज़ आवर राइट, एक्सेस टू सेव वाटर इज़ फंडामेंटल ह्यूमन राइट, कंटेमिनेटेड वाटर jeopardize both physical and social health of people, it is an affront to human dignity। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO की तरफ से ये मैसेज था कि ये एक इंसान का बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है कि उसको साफ़ पानी दिया जाए, और उसको जो कंटेमिनेटेड वाटर है इससे क्या होती है कि फ़िज़िकल और सोशल जितनी भी लोगों की लाइफ है, जो उनकी हेल्थ है, उनकी ज़िंदगी है, वो उससे ख़तरे में पड़ जाती है। जेपरडाइज का मतलब यही है कि ख़तरे में पड़ जाना। ठीक है, और ये जो ह्यूमन है, एक इंसानी ज़िंदगी, उसके ये सब चीज़ें उसके ख़िलाफ़ हैं। तो इसीलिए साफ़ पानी का मिलना हर इंसान का बुनियादी हक़ है, जिसके लिए गवर्नमेंट को भी ट्राई करनी चाहिए और हम सबको भी करनी चाहिए। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, so we have done our chapter and I hope that you people must have enjoyed the reading of it। और आप इसको खुद से दोबारा से रीड भी कीजिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने अच्छे से याद भी कर लेने हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वी विल टेक द असेसमेंट ऑफ दिस। So dear students, take very good care of yourself and keep on learning. Inshallah next time we will meet with some new chapter and new lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.